Hello students, today we will discuss a lesson from your Beehive books and the title of the lesson is If I Were You and it is written by Douglas James. This lesson is actually a play and two main characters are there in this play. One is Gerard, who is a playwright who writes play, and another character is Intruder. Intruder means a person who enters a place without permission and often secretly. He is a criminal and he enters Gerard's cottage, and his main motive to enter there was to kill Gerard, and he wanted to use his identity. Means वो गेरार्ड को मारने के बाद गेरार्ड बनकर उस कॉटेज में रहना चाहता था. उसकी आइडेंटिटी गेरार्ड की पहचान को वो चुराना चाहता था. That's why the title of this play is If I Were You. Here I is intruder. Let us start the play. First of all, scene. A small cottage interior. There is an entrance back right which may be curtained. Another door to the left must be a practical door. The furniture is simple, consisting of a small table towards the left, a chair or two, and a divan rather upstage on the right. On the table is a telephone. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सीन इज डिस्क्राइब्ड. जब भी कोई प्ले ओपन होता है, स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले सीन आता है कि वहाँ पर क्या क्या सामान वहाँ पड़ा है, किस तरह से सीन को, प्ले को इनेक्ट किया जा रहा है. तो डैट इज अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर जहाँ पर देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टन. जो बैक साइड पे जो एंट्रेंस है उसके ऊपर कर्टन है, मीन्स डैट इज नॉट इन यूज. अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर. और जो लेफ्ट साइड पे डोर है वो प्रैक्टिकल डोर है. इट मीन्स दैट डोर इज इन यूज. वो डोर यूज में आ रहा है. द फर्नीचर इज सिंपल, कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट. और रूम में, कॉटेज में बहुत सिंपल सा फर्नीचर है. एक छोटी टेबल है जो लेफ्ट साइड में है. अ चेयर और टू, एक या दो चेयर हैं. एंड अ दीवान रैदर अपस्टेज ऑन द राइट. व्हाट इज अ दीवान? जो सिंगल बेड होता है जिसको जनरली हम लॉबी में यूज करते हैं, दैट इज दीवान. वो अपस्टेज है राइट साइड में. एंड ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन. और टेबल के ऊपर एक टेलीफोन है. व्हेन द कर्टन राइजेस, Gerard is standing by the table making a phone call. He is of medium height and wearing horn-rimmed glasses. He is dressed in a lounge suit and a great coat. His voice is cultured. When the curtain rises means when the scene starts. Gerard is standing by the table making a phone call. जब सीन स्टार्ट होता है तो फर्स्ट सीन में ही गेरार्ड जो होता है वो टेबल की साइड में खड़ा होके फोन कर रहा होता है. एंड हिज हाइट इज मीडियम, मीन्स ही इज नॉट वेरी टॉल और शॉर्ट, बट ही हैज मीडियम हाइट. एंड ही इज वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस. हॉर्न रिम्ड ग्लासेस मीन्स जो गाय के सींग की जो शेप होती है उस शेप के उसने ग्लासेस पहने हुए थे. ही इज ड्रेस्ड इन अ लाउंज सूट. व्हाट इज अ लाउंज सूट? A man's suit consisting of a matching jacket and trousers worn during the day, especially in the workplace. So he was wearing that suit and a great coat. And his voice is cultured. Cultured here means educated. उसकी आवाज से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा educated है. Gerard says, well, tell him to phone up directly. I must know. Yes, I expect I'll still be here, but you mustn't count on that. In about 10 minutes time, righto, goodbye. Now, in first scene, Gerard is talking to someone on phone. तो वो फोन पे क्या कहता है कि उसको कहे कि वो मुझे डायरेक्टली कॉल करे, मुझे सब पता होना चाहिए. एंड ही ऑल्सो एक्सपेक्ट्स टू बी देयर विद इन 10 minutes. But he also says that you mustn't count on that. Count on that means depend on or rely on. So he expected to be there in 10 minutes, but he also says that don't depend on this. Then he says goodbye. He puts down the phone and goes to the divan on the left, where there is a traveling bag, and starts packing. And after that, he puts the phone down
and goes to the divan which is on the left side, and he started packing a traveling bag. While he is thus engaged, another man. Now, who is another man here? The intruder. Similarly, in build 2, Gerard enters from the right silently. Now, silently, the intruder entered the cottage, revolver in hand, and he is holding a revolver in his hand. He is flashily dressed in an overcoat and a soft hat. What he was wearing? He was wearing an overcoat and a soft hat, as you can see in the picture. He bumps accidentally against the table. Then by mistake he hit the table, and there was a noise when he hit the table, and at the sound Gerard turns quickly. When Gerard heard that noise, then he turned back to see that who was there. Gerard says pleasantly, "Why, this is a surprise, Mr. Then Gerard very pleasantly talks to him that what a surprise that you are here, Mr. He says Mr. Why? Because he wanted to know the name of that person, because he didn't know him. That's why he wanted to know his name. So he says Mr. Intruder says, "I'm glad you are pleased to see me. I don't think you will be pleased for long. Put those paws up." Now intruder says that he was happy कि गेरार्ड उसको देख के खुश हुआ है, but he also says कि वो अब ज़्यादा देर के लिए खुश नहीं रहेगा, and he asked him to put his paws up. Paws here means hands, कि अपने hands ऊपर कर लो. इंट्रूडर उसको हैंड्स ऊपर करने के लिए क्यों कहता है? ताकि वो अपने हैंड से कोई मूवमेंट ना कर सके. So he asked him to put his hands up. Gerard says, "This is all very melodramatic, not very original, perhaps, but..." Now Gerard says that this is all very melodramatic. Melodramatic means where there are excessive emotions. जब ज़रूरत से ज़्यादा इमोशन शो किया जाता है, that is melodramatic. तो he says कि बहुत ज़्यादा melodramatic लग रहा है, ओरिजिनल नहीं लग रहा है शायद, but लेकिन इंट्रूडर उसको इंटरप्ट करते हुए कहता है, trying to be calm, and then intruder just asked him to be calm, कि तुम चुप करके खड़े रहो, don't interrupt, बीच में डिस्टर्ब मत करो. Then Gerard says, "Nonchalant is your word, I think." Then Gerard suggested him, like intruder was just stopped at, he wanted to say something but he could not find the word. तो Gerard उसको word suggest करते हैं कि I think you want to say nonchalant. Then intruder says thanks a lot. Why he said thanks? Because he wanted to thank him for suggesting the word. You will soon stop being smart, कि तुम स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो. I'll make you crawl. अब इंट्रूडर जो है वो गेरार्ड को मारने के लिए आता है. वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी क्रॉल करवाऊंगा. क्रॉल मीन्स रेंगना. आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी. लेकिन उससे पहले वो कुछ चीज़ें उससे जानना चाहता था. लेट अस सी फर्दर. गेरार्ड सेज, "एनीथिंग यू लाइक. आई नो ऑल द आंसर्स, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन. You may be comfortable, but I'm not." Now Gerard says that he would tell him anything, whatever he wanted to know. He will give all the answers. लेकिन शुरू करने से पहले वो अपनी पोजीशन चेंज करना चाहता था. गेरार्ड अपनी पोजीशन चेंज करना चाहता था. As he was standing by the divan and he was packing his bag, so he was not in a comfortable position to answer all the questions. So he wanted to change it. You may be comfortable, but I'm not. And further he says that कि तुम कंफर्टेबल पोजीशन में हो सकते हो लेकिन मैं नहीं हूं. तो वो बैठ के आराम से उससे बात करना चाहता था. Then intruder says, "Sit down there and no funny business." Then intruder asked him to sit down, but he wanted him not to play any trick. Motions to chair and seats himself by the divan by the bag, on the divan by the bag. अब इंट्रूडर गेरार्ड को इशारा करता है एक चेयर की तरफ कि तुम उस चेयर पे बैठ जाओ और
इंट्रूडर खुद दीवान के ऊपर बैठता है उसके बैग के साथ. नाउ देन वील हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ. जब दोनों अपनी पोजीशन पे बैठ जाते हैं तो इंट्रूडर उससे कहता है कि अब हम तुम्हारे बारे में कुछ बातें करेंगे. वाई द इंट्रूडर वॉन्टेड टू टॉक टू गेरार्ड अबाउट हिम? Because he himself wanted to be Gerard after killing him. Gerard says, at last a sympathetic audience, I'll tell you the story of my life. How as a child I was stolen by the gypsies and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. How? Now Gerard was very happy to get the sympathetic audience. Sympathetic means someone जो उसके साथ sympathy से पेश आ रहा था. Then he said he would tell him the story of his life. Then he started telling his story that how as a child I was stolen by the gypsies. कि गेरार्ड जब छोटा था तो उसको gypsies ने चुरा लिया था. Gypsies means nomads. Nomads are the people, those who wander here and there. They don't have their own houses. They just wander. They just roam. And why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage? How? Now he also wanted to tell him कि अब 32 की एज में वो उस कॉटेज में अकेला क्यों रहता था. He wanted to continue his story. Then the intruder just interrupted. Keep it to yourself and just answer my questions. You live here alone. Well, do you? The intruder stopped him in between and started asking him some questions. He did not want to know his whole life story. He wanted to know some particular things. You live here alone. Well, do you? अब वो उससे ये जानना चाहता था कि तुम इस कॉटेज में अकेले रहते हो. Gerard then says, I'm sorry, I thought you were telling me, not asking me. A question of reflection, your voice is unfamiliar. अब गेरार्ड इंट्रूडर से सॉरी फील करता है. गेरार्ड को लगता है कि इंट्रूडर उसको बता रहा है ना कि उससे पूछ रहा है, क्योंकि उसका जो स्टाइल था बोलने का उससे उसको पता ही नहीं लगा कि वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है या उसको कुछ बता रहा है. लाइक द इंट्रूडर आस्क्ड हिम, यू लिव हियर अलोन. देन ही थॉट दैट ही इज गिविंग अ स्टेटमेंट. तो whenever we ask a question, then our voice rise up in the end. Like if we are asking a question, you live here alone, then it shows clearly कि हम उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं. लेकिन अगर हम एक स्टेटमेंट कहते हैं you live here alone, it means we are telling him something. That's why Gerard was confused. A question of inflection. Inflection means way of speaking. Your voice is unfamiliar. उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन से गेरार्ड को पता ही नहीं लगता कि वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है या उसको कोई स्टेटमेंट बता रहा है. इंट्रूडर सेज विद एम्फेसिस, डू यू लिव हियर अलोन? अब इंट्रूडर उसको जोर दे के पूछता है कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो. देन गेरार्ड सेज, एंड इफ आई डोंट आंसर? देन ही आस्क्ड हिम कि अगर मैं तुम्हारी इस बात का आंसर ना करूँ तो? इंट्रूडर सेज, you've got enough sense not to want to get hurt. कि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता हूं अगर तुम मेरी बात का आंसर नहीं करोगे तो. मीन्स तुम्हारे अंदर इतनी सेंस तो होगी कि तुम अपने आप को हर्ट नहीं करवाना चाहोगे. गेरार्ड सेज, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mr. Then Gerard answers कि गुड सेंस वो होती है जिसमें हम उस पेन को अवॉइड करने की एबिलिटी रखते हो, ना कि सिर्फ ये इच्छा रखते हो कि हमारा पेन कम हो जाए. व्हाट डज इट शो? कि जो गेरार्ड था वो इंट्रूडर से और ज़्यादा स्मार्ट था. वो एक्चुअली उसको अपनी बातों में उलझाकर उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था. वो असल में समझ चुका था, गेरार्ड समझ चुका था कि ये मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आया, ये उसे मार भी सकता है, लेकिन वो उसको बातों में उलझाकर उसको डिस्ट्रैक्ट करके और उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रहा था. व्हाट डू यू थिंक, मिस्टर Then again he asked him, Mr. Actually he wanted to know his name,
कि वो उसका नाम पता करना चाह रहा था, इसलिए वो बार बार मिस्टर के बाद ब्लैंक छोड़ रहा था. देन इंट्रूडर सेज, नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर गिराड. वट आर योर क्रिश्चियन नेम्स? देन इंट्रूडर सेज कि तुम मेरे नाम पे ध्यान मत दो, मुझे तुम्हारा नाम ज़्यादा पसंद है मिस्टर गिराड. देन ही आस्क्ड हिम अबाउट हिज क्रिश्चियन नेम. क्रिश्चियन नेम क्या होता है? जो एक पर्सन का फर्स्ट नेम होता है. जब वो क्रिश्चाइंड होता है तो उसका फर्स्ट नेम चर्च में रखा जाता है. दैट इज नोन एज क्रिश्चियन नेम. गेरार्ड सेज विंसेंट चार्ल्स. देन ही told him his first name, that was Vincent Charles. Intruder then asked him, do you run a car? क्या तुम गाड़ी भी चलाते हो? Then Gerard says, no. Intruder says, that's a lie. You are not dealing with a fool. I am as smart as you and smarter. And I know you run a car. Better be careful, wise guy. तो इंट्रूडर गेरार्ड से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम गाड़ी नहीं चलाते हो. तुम एक फूल के साथ डील नहीं कर रहे हो कि मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ जैसे तुम स्मार्ट हो, या मैं तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ. मुझे पता है कि तुम गाड़ी चलाते हो. बेटर बी केयरफुल वाइज गाय. तो उसको वो दोबारा से धमकी देता है कि तुम बहुत केयरफुली बात करो, झूठ मत बोलो मेरे साथ, क्योंकि मैं तुम्हें गोली भी मार सकता हूँ. नाउ गेरार्ड आस्क, आर यू अमेरिकन और इज दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन? अब गेरार्ड इंट्रूडर से पूछता है कि क्या तुम अमेरिकन हो या तुम सिर्फ अमेरिकन एक्सेंट फॉलो कर रहे हो. इमिटेशन मीन्स टू कॉपी समवन. इंट्रूडर वॉज जस्ट इरिटेटेड विद दिस. लिसन, दिस गन्स नो टॉय. आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स. अब इंट्रूडर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है उसकी बात से कि तुम मुझसे क्यों कुछ इंक्वायरी कर रहे हो, तुम मुझसे क्यों कुछ पूछ रहे हो, कि मेरे हाथ में जो गन है वो टॉय नहीं है, वो एक रियल गन है और इस गन से मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ, बिना मारे भी तुम्हें इंजर कर सकता हूँ और अपने सारे आंसर्स पा सकता हूँ. उसे गेरार्ड को इंजर करके भी सारे आंसर्स मिल सकते थे. नाउ गेरार्ड सेज, ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू. I do possess a car and it's in the garage round the corner. अब गेरार्ड उसको कूल डाउन करता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा. आई विल असिस्ट यू, मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा, हेल्प करूंगा. मेरे पास एक कार है और गैराज में है और आई कैन रन अ कार, और उसको गाड़ी चलानी आती है. इंट्रूडर सेज, दैट्स बेटर. डू पीपल ऑफन कम हियर? नाउ इंट्रूडर वॉज हैप्पी. देन फर्दर ही आस्क्ड कि क्या अक्सर यहाँ पर लोग आते रहते हैं? गेरार्ड सेज, वेरी रेयरली, कि बहुत कम लोग यहाँ पर विजिट करते हैं. सरप्राइजिंगली few people take the trouble to visit me. There's the baker and the greengrocer, of course, and then there's the milkman, quite charming, but no one so interesting as yourself. Gerard told him कि बहुत कम लोग उससे मिलने के लिए आते थे, और जो मिलने आते थे वो कौन कौन थे? बेकर था जो ब्रेड सप्लाई करता था, ग्रीन ग्रोसर था जो सब्जियां सप्लाई करता था, और एक मिल्कमैन था, बहुत चार्मिंग था, लेकिन कोई भी तुम्हारी तरह इंटरेस्टिंग पर्सन उससे मिलने यहाँ नहीं आता था. इंट्रूडर सेज, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड पीपल. देन ही सेज दैट कि उसको पता चला है कि वो ट्रेड्स पीपल से नहीं मिलता, उससे कभी नहीं मिला. ट्रेड्स पीपल कौन होते हैं? जैसे लाइक स्मॉल ट्रेडर्स, जैसे शॉपकीपर्स हैं या जो छोटा मोटा काम करते हैं. तो गेरार्ड उन छोटे लोगों से, मीन्स जो ट्रेड्स पीपल हैं, उन लोगों से नहीं मिलता है. Gerard says, you seem to have taken a considerable amount of trouble. Since you know so much about me, won't you say something about yourself? You have been so modest. Then Gerard says कि तुम्हारे पास तो उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तुमने उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है, तो क्या वो अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहेगा? You have been so modest. Modest means the person who doesn't speak of himself, जो अपने बारे में बात नहीं करता, means who is very down to earth or who is very humble. अगेन गेरार्ड उसको अपनी बातों में उलझाकर उसके बारे में कुछ जानना चाह रहा था, कि उसका नाम तक वो इंट्रूडर का पता नहीं लगा पा रहा था, तो उसके बारे में वो कुछ ना कुछ बात निकलवाना चाह रहा था. इंट्रूडर सेज, आई कुड टेल यू पेलेंटी, यू थिंक यू आर स्मार्ट,
but I'm the top of the class round here. I've got brains and I use them. That's how I got where I have. इंट्रूडर कहता है कि वो गेरार्ड को बहुत कुछ अपने बारे में बता सकता है, लेकिन वो ये कहता है कि अगर तुम स्मार्ट हो तो मैं टॉप क्लास हूँ, टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ. आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज दैम, और उसके पास बहुत ज़्यादा ब्रेन है, दिमाग है, और वो अपने दिमाग को यूज़ भी करता है, और इसलिए उसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, इसलिए वो आज वहाँ खड़ा था. गेरार्ड सेज, एंड वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट? It didn't require a great brain to break into my little cottage. अब गेरार्ड उसको कहता है कि तुम इतना ब्रेन यूज करके आज तुम कहाँ खड़े हो? मेरे एक छोटे से कॉटेज में खिड़की तोड़कर घुसने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है. गेरार्ड उसको कहना चाहता था कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को मत समझो, क्योंकि मेरे एक छोटे से कॉटेज में घुसने के लिए इतने इंटेलिजेंसी की ज़रूरत नहीं थी. Then intruder says, when you know why I break into your little cottage, you will be surprised, and it won't be a pleasant surprise. अब इंट्रूडर उसको कहता है कि जब तुम्हें ये पता लगेगा कि मैं तुम्हारे एक छोटे से कॉटेज में क्यों आया हूँ, तो तुम बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाओगे, और वो जो सरप्राइज होगा वो प्लेजेंट सरप्राइज नहीं होगा, तुम्हें कोई खुशी नहीं होगी उस सरप्राइज को सुन के. गेरार्ड सेज, with you figuring so largely in it that is understandable, कि अगर तुम इसमें बहुत ज़्यादा लार्जली तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो तो वो अंडरस्टूड है कि तुम कुछ गलत काम करने आए हो, कुछ नुकसान पहुंचाने आए हो. that was understandable. by the way, what particular line of crime do you embrace? embrace means to adopt, कि तुम किस तरह का क्राइम, कोई पर्टिकुलर क्राइम करते हो, और aren't you a specialist, या तुम कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो, किसी भी तरह का तुम क्राइम कर लेते हो. देन इंट्रूडर सेज, माई स्पेशलिटी इज ज्यूल रॉबरी. योर कार विल डू मी अ ट्रीट. इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस. देन इंट्रूडर टोल्ड हिम हिज स्पेशलिटी. वो एक ज्यूल रॉबर था, और उसकी जो गेरार्ड की जो कार थी वो उसके लिए ट्रीट का काम करेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैंडी थी. डैंडी मीन्स स्टाइलिश. वो एक स्टाइलिश बस थी और उसको बहुत ज़्यादा रोबरी में हेल्प करने वाली थी. गेरार्ड सेज, आई एम अफ्रेड jewels are few and far between in the wilds of Essex. नाउ गेरार्ड एडवाइज्ड हिम कि यहाँ पर इस जंगल में, जिस एरिया में गेरार्ड रहता है, कि यहाँ पर तो कोई ज्वेल्स नहीं है और तुम तो रोबर हो, तो तुम यहाँ रोबरी कैसे करोगे. देन इंट्रूडर सेज, सो आर द कोप्स, कि जिस तरह से इस वाइल्ड एरिया में ज्वेल्स नहीं है तो पुलिसमैन भी नहीं है. आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल. तो ही वॉज एबल टू टेक रेस्ट इन दिस कॉटेज आउट ऑफ द रीच ऑफ द कोप्स, एंड नोबडी वुड बी एबल टू कैच हिम. मीन्स रोबरी करने के बाद वो यहाँ इस कॉटेज में आकर पुलिसमैन से दूर आराम से रेस्ट कर सकता है. तो ये उस इंट्रूडर का प्लान था. गेरार्ड सेज, यू मीन टू लिव विद मी? A trifle sudden, isn't it? You have not been invited. And Gerard asked the intruder कि क्या वो वहाँ पर गेरार्ड के साथ रहेगा. ट्रिफल मीन्स अ लिटिल, कि ये तो एक सडनली उसको पता लगा है कि वो उसके साथ रहने वाला है, और उसने उसको इनवाइट भी नहीं किया वहाँ रहने के लिए. देन इंट्रूडर सेज, यू वोंट बी हियर लॉन्ग, सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क. अब इंट्रूडर कहता है कि उसने गेरार्ड से नहीं पूछा वहां रहने के लिए, क्योंकि गेरार्ड अब जिंदा ही नहीं बचेगा, क्योंकि वो गेरार्ड को मारने वाला था, और उसको मारने वाला है तो उसकी परमिशन लेने की उसको कोई जरूरत नहीं थी. सो दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर इफ आई वर यू. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर. थैंक यू सो मच.